Old friend from many years ago, 80s. The jury here, old friends again, so many of them. And I see some very enthusiastic young people, artists. Never met them. I'm going to just meet. So I know the faces and I don't know the names, so you have to excuse me for that. Rashmi, yes, and Nandesh, yes. I've been watching your work and really appreciating what you've done on television, in your dancing, and so many episodes I've watched you endlessly. It's a great feeling. I mean, there were years and years when I didn't get any single award. And I used to think, what must it be like to go up there and receive an award and be recognized for your work? And then when I'd forgotten all about awards, then those years the awards started coming. So it's a very strange journey for an artist when you're all there, you're all enthused about working and you feel that I've done this, I've done that, have people seen it, have they not? There's a lot of excitement, there's a lot of anxiety. But actually, it takes years and years of hard work to get there. And now I feel, okay, if you're recognized at this stage, if your work is recognized now, then probably it's been worth it. The whole journey, the travel to this spot has been worth it. And I want to thank everyone for also all of you who are here this evening. Thank you all for being here for all of us. Thanks. Thank you so much, Dipti ji, for the one. Thank you so much, Ashwin ji. Bomba Bomb, Savat Maji Ladki, Shejari, Ek Hota Vidushak, La Pandav, Aflatun and others. She has also starred as the lead actress in films like Ghar Aaya Mera Pardesi, Pathrila Rasta, Mangal Pandey The Rising and Mr. Ya Miss and Jigyasa. Varsha is extremely busy in Marathi films. Her recent films were Dunyadari and Rutu. My dear friends, let's have a huge round of applause for Varsha ji. May I? Honorable Shri Yogesh Rishi ji, Honorable Anil Dhawan ji, Avtar Gill ji, Mr. Abhishek Bachchan, Rashmi Desai ji, other dignitaries on the dais, ladies and gentlemen, Namaskar. It's really an honor to receive this Golden Achievers Award, and I thank Mr. Abhishek Bachchan for his efforts. I do understand that you have to put in a lot of efforts to put everything together, financial efforts and all kinds of efforts. It's not easy to hold such functions, award functions. About 20 years back or 15 years back, we used to wait for a national award or Filmfare Award or a state award, screen award. Then came the era of satellite channels, and all the channels used to have their own awards. But nowadays, many social organizations
have such awards, and besides being a pat on our shoulders, it elevates our position in the society. Which actor doesn't like awards? I think all the time we dream of winning an award. So I thank you very much, Mr. Abhishek Bachchan. He has a famous name, but he has not relied only on that famous name. He has worked hard, and this is definitely a feather in my cap. Thank you very much, and thank you very much for your patience. Thank you. Jai Maharashtra. Thank you so much, Varsha ji. My dear friends, we welcome with us here Shri Dheeraj Kumar ji. A huge round of applause to welcome him. And may we also present a token of love to Shri Dheeraj Kumar ji. Welcome, sir. Well, our Golden Achiever Award. Once again, I felicitate Shri Dheeraj Kumar ji. Dheeraj Kumar ji has so far acted in 21 Punjabi films from 1970 to 1984. He started a production company, Creative Eye, in which even I have worked, and has made many significant mythological shows, where he has also featured in song from the film Swami, where the song was completely picturized on him, and has also acted in many movies like Heera Panna, Raaton Ka Raja, Shriman Shrimati, etc. Today he is a well-known TV serial maker who has reached the dizzy heights of success and fame with his production house. And his latest offering is Singhasan Batisi on Sony Pal. Ajay! Hearty congratulations to Dheeraj Kumar ji, and we are really honored, sir, to have you here. May I also have the pleasure of requesting Shri Dheeraj Kumar ji to kindly come on the podium and say a few words to our lovely audience out here. Hello, I request that he be given a... Thank you. Dheeraj Kumar ji, may we have the pleasure of hearing. Very pleasant evening to all of you. First of all, my apologies for being a little late. नाम धीरज है तो हर काम थोड़ा धीरज के साथ होता है, तो इसलिए क्षमा चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ कि थोड़ी देरी हो गई आने में। जिंदगी में जब भी आप जैसी ऑडियंस मिलती है, आप जैसे लोग मिलते हैं और इस तरह का अवार्ड मिलता है, तो तहे दिल से खुशी होती है। खुशी होती है कि अवार्ड आज से 30 साल पहले भी मिलते थे और 30 साल के बाद भी मिल रहे हैं, जब आप जिंदगी का एक बहुत लंबा अरसा तय कर चुके होते हैं। बट लेट मी कन्फेस, अवार्ड इज ऑलवेज एन अवार्ड। इफ यू गेट इट, it gives you bigger responsibilities to do better, to perform better, to move forward with zeal, interest and strong determination. मैं आज यही कहना चाहूँगा, टेलीविजन की जो शुरुआत हुई मेरी कंपनी क्रिएटिव लिमिटेड 1985 और आज 2014 हो गया है। एक इतना लंबा जो अरसा तय किया है, उस अरसे में एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जाने मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो लोग तो साथ आते हैं, आपकी अगर इच्छाएं हैं, कुछ काम करने का दृढ़ निश्चय है, तो अच्छे लोगों का साथ मिलता है। तो इस सफर में मुझे बहुत से अच्छे लोग मिले, ऐसे लोग मिले जिन्होंने मुझे अपनी प्रेरणा दी, अपना सहयोग दिया, अपनी गाइडेंस दी, और कुछ मेरे साथ करने से करना मिलाकर चले। Where I always admit that my wife Zubi, कहते हैं शिव और शक्ति, अरे भाई अगर शिव के बिना शक्ति नहीं है तो शक्ति के बिना शिव नहीं है। तो मेरी पत्नी ने मेरा साथ हमेशा ऐसा ही दिया। मैं तो शिव का एक सिर्फ निमित्त मात्र हूँ और इतना ही कह सकूंगा कि I am always thankful to the God that I got a wonderful companion who is still holding hands and moving towards
my dreams and desires. मैं अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोग देख रहा हूँ जिन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मेरे परिचय भाई आप सकते हैं, और बहुत सारे लोग बैठे हैं, विजय जी, आवाज जी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिंदगी में मैं आज भी अपने आप को यही महसूस करता हूँ कि आज ही मेरा पहला दिन है, मेरा पहला अवार्ड है। मेरे मन में वही भावनाएं हैं और यही कारण है कि which keeps me always young, on my toes, keep me moving and inspire me to keep on doing things to the best of my capacity. और मैं वही कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि पिछले साल इन्होंने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था, तब मैंने कहा था कि मेरी लाइफ शुरू हुई है भाई, अब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे रहे हैं। बट anyhow, मैं दिल से अभिषेक जी का, जूरी का शुक्रगुजार हूँ। सदा ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे, ऊपर वाले की दुआएं मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद और नया साल आप सबको थैंक यू। Thank you so much, Dheeraj ji. Okay, friends, moving further to announce our award winners. The next award winner is Miss Delnaz Irani. My dear friends, let's put our hands for the talented and firebrand actor needs no introduction, as she is by now a name to reckon with in the world of cinema and television. Having worked with some of the biggest names in Bollywood in several big projects, Delnaz is today more popularly recognized as the face of Big Boss 6, who fought it out for 93 days in it and emerging as 6th in the race for the title. Hats off to you, Delnaz. Ladies and gentlemen, let's put our hands together once again and congratulate Delnaz Irani. Congratulations, Delnaz, and may I request you to kindly come on. And I would just like to mention, it's very nostalgic because I've got so many dignitaries out here who I've known for years. I think when I was 18, I did a play with Avtar ji. I met Dipti ji when I was really, really young, just started off with television. So it means a lot standing out here and taking this award. It's also, I don't know whether to say it, but it's also my 25th year in the industry. With my stage experience, my television experience, and a few films. Excuse me, ma'am. 1 minute. Excuse me here. Ma'am here. Ma'am, look at center. Ma'am here. Wait, 1 minute. Excuse me, ma'am. Ma'am here. Ma'am here. Ma'am here. Ma'am here. I'm looking at left side. Very popular show on Sony TV. She was in fact even appreciated by our Prime Minister Mr. Modi, who encouraged shows for the working women at the FICCI meet in New Delhi. Indira Ji also won the State Award for an Oriya film. Indira Ji has recently done a Marathi film which focuses on today's youth and rape issues. A persona with unlimited talent, exploring different linguistic films. She has also featured in films like Tere Naam, Holiday, and is currently doing a show called Tum Aise Hi Rehna on Sony. My dear friends, let's have a huge round of applause and congratulate Indira Krishnan Ji. May I... One more state. Really appreciate the people who have been doctors, teachers, professors. It is so important to continue this awards because it not only enhances humanity.
मैम सामने हो गया। Hello, how are you? मैम here. Hearty congratulations, Ravi ji. Well, Ravi ji, may we also have the pleasure of hearing you. May I request you to kindly come on the podium and say beautiful words to our lovely audience present here. Ravi ji, may I request you to kindly come on the dais and say a few words to our lovely audience. Good evening, सभी लोगों को प्रणाम. Thank you so much. AIAC Golden Achiever Award ने हमको सम्मान दिया. दादा बहुत अच्छा लग रहा है. मेरे सारे मित्र, मेरे seniors and my family, Rashmi is here, everybody. So good. सभी लोगों को प्रणाम और धन्यवाद. बस यही कहेंगे 250 फिल्म की 200 से ज्यादा भोजपुरी, 50 हिंदी सिनेमा, मणिरत्नम साहब शाम में, लेकिन और अभी भी फिल्में करता जा रहा हूँ, प्रोड्यूस करने लगा हूँ. कुछ बस दीवानगी है. सिनेमा ही जीवन है. कभी डर लगता है कि मेकअप नहीं लगेगा तो जल्दी मृत्यु हो जाएगी या जल्दी बूढ़ा हो जाऊंगा. सो भगवान से यही प्रार्थना है कि मेकअप हमसे कभी न छीने और बस आप लोग आशीर्वाद देते रहिए. जब तक जीते रहेंगे हम लोग आनंद देते रहेंगे. That is what we actors all about, you know. Thank you so much everybody and lovely night. Thank you. Rashmi Desai has made the transition to acting in TV serials after having conquered the audiences in both Bhojpuri as well as Gujarati films. Though she had made her debut in serials like Pari Hu Main earlier, it is her stint in the popular serial Uttaran that is fetching her accolades from every quarter. After taking part in the reality show Zara Nach Ke Dikha, today Rashmi is eyeing at Hindi films. Ladies and gentlemen, let's hear it out for our beautiful Rashmi Desai. Congratulations, Rashmi, and may I request the gorgeous Rashmi. Please for coming late. I want to say thanks to God, my family, my mother first, and then my husband, Nanvish Tandhu, because of their support. I am nothing because of they are my backbones. कहते हैं ना कि बेस सही हो तो आपकी इमारत भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. तो मैं आई बिलीव इन दिस एंड थैंक यू सो मच अभिषेक जी. आपने मुझे इस ट्रॉफी के लायक समझा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अर्न एंड मैं हर स्पीच पे बहुत नर्वस होती हूँ. मुझसे एक्टिंग हो जाती है बहुत हार्ड वर्क के साथ, पर जहाँ माइक मेरे हाथ में इस तरह संभाल जाता है मुझसे बोला नहीं जाता था. आई वाज टेलिंग हर प्लीज मैं ज़्यादा नहीं बोल सकती. सो आई जस्ट वांट टू से हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन एंड हैव अ लवली इवनिंग. थैंक यू सो मच एंड स्पेशली आई वांट टू से थैंक्स बिकॉज जब मैंने अपने करियर की शुरुआत की थी, जो मेरे गुरु है जिन्हें मैं आज तक कहती हूँ कुछ नया काम करने से पहले और हर वक्त उनकी ब्लेसिंग लेती हूँ, दैट इज ओनली रवि किशन जी. बिकॉज आज जो भी मैं ऑन स्क्रीन करती हूँ इट्स ओनली बिकॉज ऑफ हिम. एक छोटी चीज से लेके किस चीज को कैसे करा जाता है, कैसे पोर्ट्रे किया जाता है, कैसे एक्ट किया जाता है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ रवि किशन जी. एंड
मेरे करियर की शुरुआत जब मैंने की थी, पहले इंसान जिससे मैं मिली थी वो है योगेश लखानी जी, जो आज यहाँ बैठे हैं और उनके सामने ये ट्रॉफी ले रही हूँ. So I'm feeling very nice. Thank you so much. Is poised to play the role of Yasir. He played Rahul in Hum Ladkiyan and Qayamat as Sakit, and has also starred in Phir Koi Hai on Star One, and is now the main lead in Uttaran as Veer. Nandish recently wowed the audiences with his breathtaking stunts in the reality show Entertainment के लिए कुछ भी करेगा on Sony. My dear friends, let's hear it out for Nandish Sandhu. Hearty congratulations to Nandish, and may I also. Hi, good evening everyone. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा बिकॉज जितना भी बोलूँगा उससे कहीं ज़्यादा बोला जा चुका है और बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें यहाँ पर कही जा चुकी हैं. सो ऑल आई वांट टू से इज थैंक यू सो मच मिस्टर बच्चन कि आपने फिर से हमें एक बार यहाँ पर बुलाया और हमें ये मौका दिया कि हम आप लोगों सबके साथ यहाँ पर एक मंच पे और एक जगह पर टाइम स्पेंड कर सके. एंड आई वुड बी ऑनर्ड अगेन एंड आई वुड love to be a part of this function every year, and I wish Mr. Bachchan all the best, and thank you so much sir that you're honoring all of us and giving us a chance to be here with you. Thank you. All the achievers present here, they deserve these awards. Okay, moving to the serial Uttaran as Ichha. She had made her debut as an actress with the Bengali movie Chokar Bali with Aishwarya Rai when she was just 12 years old. Tina has also to her credit quite a few successful shows on television like Koi Aane Ko Hai, Comedy Circus and Ahad. Tina Datta played teenage Lolita in the Hindi film Parinita in 2005. My dear friends, let's put our hands together and congratulate Tina Datta. Congratulations Tina once again, and may I request Tina to kindly come here and say a few words to our beautiful audience. Hi, good evening everyone. First of all, thank you so much for the lovely award. Thank you बच्चन साहब, वापस से एक और बार मुझे अवार्ड मिला. हर साल या हर वक्त जब भी एक अवार्ड मिलता है तो सच में एक एनर्जी लेवल और बढ़ जाती है और अच्छा काम करने का, और एक बूस्ट हो जाते हैं हम कि और हार्ड वर्किंग के साथ और लगन के साथ और अच्छे से काम करो. एंड या दिस इज वन मोर. थैंक यू सो मच. आई डोंट, आई एम टू नर्वस टू स्पीक. थैंक यू सो मच. Career in modeling and has starred in movies such as Rakta Charitra, Allah Ke Bande, and acted in several television daily soaps including Kya Hoga Nimbu Ka, Rahe Tera Aashirwad, Kahani Hamare Mahabharat Ki, and also he was a wild card entry in reality television show Bigg Boss 7 where he finished in 3rd position. He has also acted in Lakeer Ka Fakir and South Indian films Dukudu and Nayak. My dear friends, let's put our hands together and congratulate Ejaz Khan. Ejaz ji, may we have the pleasure of hearing you. Thank you, sir. पहला है तो बोलते ना कि आप जैसे लोगों ने उम्मीद तो रखी है मेरी, और किसी ने कहा कि मैं एंटरटेनर नहीं हूँ और कोई अवार्ड दे रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं कहूँगा कि अभी सूरज नहीं डूबा, अभी शाम होने दो.
मैं खुद ही लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम होने दो, और मुझे बदनाम करने का बहाना ढूंढते हो बिग बॉस, मैं खुद ही हो जाऊंगा बदनाम, पहले नाम तो होने दो। मैं बस मिस्टर अभिषेक बच्चन जी का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे अवार्ड दिया है, और जितने भी जूरीज, थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को इस तरह ही आगे और अवार्ड हम जैसे न्यू कमर्स को देते रहे और हमें इनकरेज करते रहे। और हमारे प्रोड्यूसर मिस्टर बलदेव सिंह बेदी जी भी यहाँ है, जिनके बदौलत मैं मिस्टर अभिषेक जी से मिला था। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। Thank you so much, Ejaz. बाबा जाओ अवार्ड ये मायने रखता है कि जो भी अवार्ड देता है अल्लाह ताला उसको खुश रखे। अवार्ड से क्या होता है, तुम्हारा इनकरेजमेंट, मतलब तुम्हारी हिम्मत बढ़ती है, तुम इनकरेज होते हो कुछ चीज़ करने के लिए, तुम्हें एक उम्मीद मिलती है कि नहीं जो तुम सोचते हो वो सही है, तुम्हारा सपना सही है, तुम जो काम कर रहे हो वो सही है, बहुत अच्छा फील होता है। एक मुकाम पर है इस वक्त अब क्या जोड़ी में नजर में आया है? हाँ, मेरी फिल्म है लव डे, नेक्स्ट 80% कंप्लीट है, अभी बिग बॉस से निकला हूँ, 20% उसकी शूटिंग बाकी है, वो ख़त्म करूँगा। लव डे मेरी फिल्म है एज ए हीरो, जो लोगों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। उसके बाद पूजा भट्ट जी की फिल्म है नर्क, तो काम तो है अल्हम्दुलिल्लाह। संजय गुप्ता जी की फिल्म है, बाकी तो अल्लाह मालिक। अवार्ड साल में कई अवार्ड होते हैं और एक इमेज मिलती है इंसान को अपनी काबिलियत साबित करने की। आजकल बहुत ज़्यादा अवार्ड हो रहे हैं, एक जाती है, बहुत से नहीं नजर आती है। एज ए स्टार, एज ए एक्टर क्या करना चाहिए? चल रहे हैं ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, चल रहे हैं ज़माने में रिश्वतों के सिलसिले, तुम भी कुछ ले दे के हमसे मोहब्बत कर लो। यही है भाई, लेकिन ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मुझे मिला है। कौन सा? Hi, this is Ejaz Khan, एक नंबर मानस, and you are watching Living India News. I have to say, Jonita Gandhi. अवार्ड लाइफ में क्या मायने रखता है? I think it's really important to encourage new talent. I'm new here. I've only been here for 2 years, so having an award, I think, really pushes me to further my efforts, and it's really encouraging to see that our efforts are being rewarded and people are noticing. So it's a very, very important thing for us. I'm still nervous. I'm still shaking. I was pretty nervous because it's a room full of, amazing people. So just to stand in front of them was pretty nerve-wracking, but it's an awesome feeling. You have to catch a race in life. I'm just working, traveling, shows, recording, that's it. Okay, I'll sing from my song from Chennai Express. टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए कहीं चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस, हो चेन्नई चेन्नई एक्सप्रेस। Get on the train, baby. Thank you. Thank you. First of all, your name, then Okay. Living India News. What do I have to say? Living India News. First of all, your name. Yeah. Or second. You're watching Living India. Yeah. Hi, this is Jonita Gandhi. Oh. Yes. Hi, this is Jonita Gandhi, and you're watching Living India News.
Rolling, guys. आज ऑल इंडिया अचीवर्स अवार्ड में आप आए हैं, क्या विश करेंगे आप इन अवार्ड? Well, I would really like to wish them all the very best because first of all, Abhishek Bachchan ji, organizing this is a great thing to recognize all the great talent among us. So in industries, great talents has been recognized today. So all of them to win and all of them who are going to win, all the very best for All India Achievers Awards. Thank you. 50 लाख रुपए में अवार्ड खरीदा है। और कुछ मिला नहीं मुझे। सबसे पहले तो मुबारकबाद जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। नहीं, आई थिंक मैं अवार्ड्स फ्रैंकली स्पीकिंग मैं मानती हूँ दैट अवार्ड्स इसलिए होते हैं ताकि आपको इनकरेज करे अच्छा काम करने के लिए, विद द ग्रेस एंड ब्लेसिंग्स एंड आप सबकी दुआओं से, ऑडियंस की दुआओं से। आई हैव बीन वर्किंग फॉर सो लॉन्ग एंड आई हैव बीन वर्किंग एंड आई विल कंटिन्यू वर्किंग। तो मैं हमेशा कहती हूँ अवार्ड इज जस्ट अ स्टेपिंग स्टोन, आपको थोड़ा सा इंकरेजमेंट देता है दैट आपने काफ़ी कुछ किया है बट और बहुत कुछ बाकी है। एंड दैट्स व्हाट आई टेल पीपल दैट कभी भी एक्टर मरता नहीं है, एक कलाकार हमेशा जिंदा रहता है लोगों के दिल में, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ देम। सो आई एम वेरी हैप्पी। आई नॉट दैट येट एक्साइटेड बट आई एम श्योर देयर इज मोर टू कम। जिम्मेदारी बढ़ जाती है? बिल्कुल, जैसे मैंने कहा जिम्मेदारी तो है ही। मैं हमेशा मानती हूँ दैट आपको अगर इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिलता है तो जिम्मेदारी तो हमेशा होती है, थी और रहेगी जब तक हम एक्टिंग करेंगे, हम कलाकार हैं। तो फॉर एनी एक्टर it's going to be his or her forte to deliver and हम करते रहेंगे और लोगों को entertain करते रहेंगे। Thank you. And Conviction, Bright Outdoor Media had a humble beginning to touch the heights of success. His client list names such as Yash Raj Films, T-Series, Balaji Motion Pictures, etc. Today, Bright is now at the pinnacle of its glory with superhuman efforts of Mr. Lakhani. दोस्तों जोरदार तालियों के साथ let us felicitate Mr. Yogesh Lakhani. Brother की दुल्हन and lately in PK. So my dear friends, let's put our hands together and people, let's give him a standing ovation. I request everyone to rise. नीचे बैठो यार, तुम्हारा स्टैंडिंग है, हमारा भी नीचे है। Congratulations, Parikshit ji, and we are indeed really honored to have you here with us. बैठिए बैठिए, हमारा नीचे होता है ना। चलने वाला तो उसको खड़ा कर देते। Very warm welcome, sir. मेरे लिए हर एक अवार्ड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये साबित करता है कि आपने अच्छा काम किया है, आपके हार्ड वर्किंग की वजह से आपको एक अवार्ड मिलता है। एंड डेफिनेटली एक अवार्ड जब मुझे मिलता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, और अच्छा काम करो और मन लगा के लगन के साथ काम करो। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बढ़ जाती है जो बहुत अच्छा लगता है, और उससे ये भी पता चलता है कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं, मेरे काम को कितना अच्छा लगा उन्हें, और मेहनत करके और अच्छा काम करने का एक मोटिवेशन मिलता है। सो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। अवार्ड जब मिलते रहते हैं तो लोगों की उम्मीदें ज़्यादा बढ़ती जाती हैं। डेफिनेटली भी ज़्यादा
डेफिनेटली मतलब उम्मीदें बहुत बढ़ जाती है और इसीलिए आपको और ज़्यादा मेहनत करके और अच्छा काम करना पड़ता है ऑडियंस को खुश रखने के लिए, उनको और अच्छे से एंटरटेन करना पड़ता है। सो डेफिनेटली हर एक अवार्ड के साथ साथ मैं अपने ऑडियंस को यही प्रॉमिस करूँगी कि मैं आगे और अच्छे से काम करूँगी और आप सबको एंटरटेन करते रहूँगी। अगला कुछ अच्छा ही करूँगी, कुछ खास ही करूँगी जिसके लिए मुझे वापस अवार्ड मिले, तो डेफिनेटली कुछ अच्छा ही काम करूँगी। अभी तो कुछ नहीं, जैसे आप सबको पता है कि उत्तरायण इज गोइंग ऑफ एयर ऑन दी 16, तो अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है क्योंकि 6 साल मैंने लगातार काम किया है, तो अभी थोड़ा सा मैं ब्रेक लूँगी। देखते हैं उसके बाद व्हाट फ्यूचर हैज इन स्टोर फॉर मी। डेफिनेटली कुछ अच्छा ही होगा, आप लोगों के लिए कुछ अच्छा ही करूँगी, अच्छे से सॉरी लिविंग इंडिया न्यूज़। ओके, हाय दिस इज टीना दत्ता एंड यू आर वाचिंग लिविंग इंडिया न्यूज़। थैंक यू। सो बंद होते ही टीना जी मिला आवाज। टीना जी लगा भाई, जल्दी लगा बहुत ज़्यादा देखिए 23-24 साल हो गए सिनेमा इंडस्ट्री में, पूरा देश जानता है, हर भाषा में काम करता हूँ मैं और 250 फिल्म करने के बाद जब अवार्ड मिलता है तो बच्चों की तरह खुश हो गया, पता नहीं क्यों माथे पे पसीना आने लगा। बहुत खुशी होती है एक एक्टर को अवार्ड देना, बहुत ये नहीं कि भाई ये सुपरस्टार हैं या ये हैं, ये है अवार्ड और कि ये सुपरस्टार हैं या ये हैं, वो नहीं, वो अमित जी भी हों, शाहरुख खान हो या हम हों, कोई भी हो जिसको अवार्ड मिलता है वो बच्चों की तरह कलाकार खिल जाता है, फिर जवान हो जाता है, फिर उसका खून दौड़ने लगता है, फिर लगता है कि और 2-4 तगड़ी फिल्में करें और देश को और आनंद दें और अपने फैंस को और पगलाएं, तो यही खुशी है। संघर्ष के दिन याद आते हैं जब कभी दिमाग में आया हो यार मुझे भी अवार्ड मिले, कभी ऐसा काम करो? बस संघर्ष तो लोग चल कर आए, मैं रेंग कर आया हूँ। मैंने इतने संघर्ष किया है कि अगर मैं शुरू करूँ तो भाई पूरा एक आप लोगों के 3-4 एपिसोड बन जाएंगे या 10 एपिसोड या 100 एपिसोड। मेरी संघर्ष की कहानी काफ़ी लोग जानते भी हैं और मज़ा है, लेकिन खुशी उस दिन भी बड़ा, उस संघर्ष में मैं दुखी नहीं था, उसमें भी खुश था। कम खाना मिलता था तब भी चलता था, नहीं खाते थे, वड़ा पाव भी खाते थे तब भी खुश थे, ऐसे भी बड़े खुश हैं। तो वो संघर्ष नहीं रहता तो शायद मैं नहीं रहता आज, और अभी भी लड़ने की, अभी भी कुछ तलाश जो जारी है, बहुत सारे अवार्ड सब, बहुत खुश हूँ मैं, आई एम वेरी हैप्पी कि भगवान हमें अभी तक जीवित रखें और देश अभी तक चाह रहा है कि मैं एक्टिंग करूँ, और इतने सालों के बाद भी लोग चाह रहे हैं, फैंस इतने सालों से हम सुपरस्टार की कुर्सी अभी तक हमारे पास है। अब ईश्वर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि अभी तक हम 16 साल हो गए सुपरस्टार बने हुए हैं और अभी भी क्रेज है हमारा। अभी नई फिल्म पंडित जी बताई ना बिया का, वही पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ। वो एक अद्भुत सिनेमा है जहाँ से भोजपुरी सिनेमा का परिवर्तन होगा। शुरुआत तीसरे दशक में हमने की थी, अब दोबारा परिवर्तन का समय आया तो दोबारा हमने प्रोड्यूस की फिल्म। अब एक फिल्म इंडस्ट्री ये फिल्म लगने के बाद एक नई दिशा में जाएगी और हम इसको ऑल ओवर वर्ल्ड लगाना चाहते हैं इस फिल्म को, क्योंकि उस लेवल पर टेक्निकली भी बनाई है कहानी के लिए और परफॉर्मेंस। भोजपुरी इंडस्ट्री में काफ़ी बदलाव आ जाएगा इस फिल्म के बाद। बिग बॉस सीजन के बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, ये लड़ाई झगड़े बड़ा मज़ा आता है। पहले सीजन से हमने शुरुआत की थी जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, तो ये अच्छा लगता है, लड़े झगड़े मज़ा लें लोग। पॉपुलर होने के लिए लड़ते झगड़ते हैं, वो अब देश जान गया, लेकिन उसकी एक सीमा होती है, मतलब मारपीट ना हो, गाली गलौज ना हो। बिग बॉस में सब चीज़ फ्रस्ट्रेशन आता है, चूंकि मैं वहाँ रहा हूँ, सब कुछ रियल है, कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है। तो बिग बॉस में जो भी आप लोग देख रहे हैं सब रियल है, बिकॉज आदमी खुद ही वैसा बिहेव करने लगता है। 2-3 महीने बंद रहो तो आप पागल हो ही जाओ। मैं नाचने लगता था, मैं खुश रहता था, मैंने इनिशियली छत वत तोड़ा था, माइक चबा गया था,
गाली गलौज देता था मैं, फिर 15 दिन बाद मैं ठीक हो गया था वहाँ। लेकिन कुछ लोग नहीं ठीक होते वहाँ पे, मैं बहुत कुछ वहाँ से पा के निकला। 3 महीने रहा था मैं, लास्ट में मैं निकला था। लेकिन एजाज बता रहे हैं उनके साथ कोई नाइंसाफी हुई, इनजस्टिस हुआ है, वो उसको मिसकैरेक्ट मानते हैं, समथिंग बाइस होता है वहाँ पे स्टारों के साथ। जैसे और भी कई लोगों ने इस तरह की हरकत की, उन्हें रखा गया और उन्होंने थोड़ा झगड़ा किया तो 9 दिन में उन्हें बाहर निकाल दिया गया। मैं इसमें उस मैटर में नहीं बोलूँगा, बिकॉज हमारा बोलना अच्छा नहीं। और ये अंदर क्या हुआ था वो सिचुएशन में हम लोग नहीं थे, तो 24 घंटे में 1 घंटा दिखाया जाता है, तो एग्जैक्टली क्या क्या हुआ वो हमको पता नहीं। तो अपना कुछ भी स्टेटमेंट देना हेडलाइन के लिए स्टुपिडिटी लगेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, मैं रवि किशन और आप मुझे देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज़ पर। मजा लूटिए। Let me also tell you that Ashka is also one of the award winners for tonight. So, Kusum joined ORG Marg in Ahmedabad as a translator after doing her schooling from St. Louis School in Ahmedabad. Besides Kusum, Ashka, who also has to her credit quite a few serials like Sindhu. सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस। खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है, क्या करें? खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है, 3 दिन में 3 अवार्ड, क्या करना चाहिए? मेरे लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी, आज बहुत गोल्डन डे है। मैं भगवान का, मेरे माँ बाप का, क्लाइंट का, मीडिया का, आप लोगों का सबका शुक्रिया करता हूँ कि मुझे लगातार कंटिन्यूस 3 दिन में 3 अवार्ड मिला। 7 तारीख को लायन गोल्ड अवार्ड मिला, 8 तारीख को ATCG बिजनेस बॉलीवुड अवार्ड मिला और 9 तारीख आज गोल्डन अचीवर अवार्ड मिला। तो हैट्रिक हो गई और मेरे लिए एक साथ में 3 अवार्ड लाइफ का पहला एक मतलब 2015 मेरे लिए शुभमय और ब्राइट फ्यूचर वाला बना। ब्राइट फ्यूचर ऑफ कोर्स बनेगा। आगे आने वाले समय में क्या कुछ प्लानिंग चल रहा है दिमाग में? मेरे लास्ट ईयर 605 कैंपेन मैंने मुंबई में किए और 150 फिल्मों के होर्डिंग्स मैंने लगाए हैं, जिसमें ये साल की हिट सुपर हिट 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़ की टोटल फिल्में ब्राइट ने की है। तो आने वाले सालों में भी 99% इवेंट्स, फिल्म, सीरियल, कॉर्पोरेट और सभी काम ब्राइट करे, ऐसी भगवान से इच्छा और मेहनत और कोशिश जारी है और मीडिया का आशीर्वाद चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू सर। कैसे ब्राइट आगे बढ़े। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। Well, winners never quit and quitters never win. That's my motto. अवार्ड बहुत मायने रखता है और ख़ास करके ये अवार्ड इसलिए बहुत मायने रखता है कि ये 2015 का मेरा पहला अवार्ड है और मेरा पहला इवेंट है। मेरी शुरुआत अवार्ड से और इस इवेंट से आज हो रही है इस साल की। सो आगाज़ इतना अच्छा है तो अंजाम भी अच्छा ही होगा। अवार्ड लेने के बाद लाइफ में ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है, ऑडियंस की और जिम्मेदारियाँ बढ़ जाएंगी क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं और आपको बिल्कुल उस पर खरा उतरना पड़ता है। एंड आई बिलीव वैसे भी आर्टिस्ट जो लोग होते हैं वो कभी मुतमईन नहीं होते, उनको हमेशा लगता है कि मैंने कम किया है, मुझे और मेहनत करनी चाहिए। आज भी जब मैं अपनी पहली फिल्में देखती हूँ या गाने सुनती हूँ तो मुझे लगता है अरे ऐसा नहीं, ऐसा किया होता तो बहुत अच्छा होता। सो वो आर्टिस्ट में एक रहता है, जज्बा रहता ही है। यू वॉन्ट टू लर्न एवरी डे एंड यू एक्चुअली डू लर्न एवरी डे। एक तो शहीद भगत सिंह जी के ऊपर मैंने गाना किया है सिंगल, और एक पंजाबी ट्रैक किया है और एक बबीता के साथ डुएट गा रही हूँ 16 तारीख को, और एक जावेद अली के साथ डुएट गा लिया है। दैट इज द टाइटल सॉन्ग ऑफ द फिल्म एक बार फिर कहो। और 6 फिल्में साइन की हैं लास्ट ईयर जो इस साल शुरू हो जाएंगी। पहली फिल्म का मुहूर्त 16 तारीख को है, आज से 6 दिन के बाद। Thank you so much and wish you all a very very happy belated New Year. Thank you so much. Good night. बैठा दो। हमारा हो जाएगा। दे दो भाई। ये टिंगो। बंद कर रहे तेरा ये। साले सब पे ये ले दे शादी। जरा क्लोज आइए। बस हाँ, अरे गिर गया। लो पीछे।
ये जा सुन कहूँ मैं एक्सक्यूज मी थोड़ा आइए नजदीक आइए एक सेकंड रुको एक्सक्यूज मी यार रेडी रश्मि सामने मिला एक सेकंड योर सेंटर लुक से कैसे लगाना शुरू कर दे हम कंटिन्यूसली बोल देते हैं बोलो आज के दिन सबसे खुशी की बात तो ये है कि जो पुराने दोस्त किसी अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं तो एक वो बेहतरीन मौका होता है अपने दिलों की बात कहने के लिए और दिलों के जज्बात शायद हम शब्दों से नहीं कहते अपनी आंखों से कहते हैं। आज परीक्षित अनिल से एक बड़े अरसे के बाद मुलाकात हुई है तो मैं दिल से कहना चाहूँगा कि वाकई आज मुझे तो मज़ा आ गया है अवार्ड फंक्शन में आने का और साथ अपने पुराने दोस्तों को मिलने का। गोल्डन अचीवर्स अवार्ड अभिषेक बच्चन साहब जो बहुत दिल से कई सालों से बड़ी मेहनत से कर रहे हैं, हम सब तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और मैं समझता हूं कि अनिल तो शायद उनके साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और परीक्षित भी कुछ अरसे से हैं। पिछले साल आप लोगों ने मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया था। परीक्षित मैं ये कहता ना कि लाइफ बिगिंस व्हेन यू आर व्हाट इज योर एज नाउ। मैं रिवील नहीं कर सकता अपनी एज। देखिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि लगभग हम दोनों ने मिलकर कैरियर एक साथ शुरू किया था और आज भी हम जनता को एंटरटेन कर रहे हैं जी। 40 इयर्स से ज़्यादा हो चुके हैं कम से कम। यस हैं? परीक्षित आप क्या कहना चाह रहे हैं? भाई ऐसा है कि मुझे भी बड़ा लुत्फ आया, बड़ी खुशगवार शाम है और एक अजीब-व-गरीब माहौल पैदा हो गया। ये सारे अपने पुराने अजीज दोस्त मिले, इनके साथ तो हम क्रिकेट भी खेल चुके हैं और इनके साथ काम कर चुके हैं इनके सीरियल्स में और बहुत लंबा और बड़ा खूबसूरत सफ़र रहा है और मैं बड़ा तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इनका बच्चन साहब का कि उन्होंने ऐसा मौका दिया कि हम इकट्ठे मिलें और ऐसे और मौके मिलने चाहिए क्योंकि मज़ा आता है। हालांकि हम एक दूसरे को मिलते नहीं हैं अक्सर मगर एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पूरी हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक परिवार के समान है और जब पुराने साथी पुराने अपने रिश्तेदार मिलते हैं बहुत अच्छा लगता है। इट्स बीन अ लवली लवली इवनिंग। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके थैंक यू जी। थैंक यू। वाईट घेताय तुम्ही? अच्छा मला वाटलं फोटोग्राफ्स। अवार्ड तो सभी को अच्छा लगता है एक्टर्स को क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको बहुत सारे अवार्ड मिले। ऐसा लगता है कि ऐसा जब कोई भी अवार्ड मिलता है तो ऐसा लगता है कि कोई भी अपना पीठ थपथपाता है, उसके साथ अपनी जो पोजीशन है सोसाइटी में वो बढ़ जाती है और ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मेरा काम देख रहा है, उसको सराह रहा है। ये जो भावना होती है बहुत बड़ी होती है। कभी कभी क्या होता है हम स्टेट अवार्ड नहीं जीत पाते हैं तो हम मायूस हो जाते हैं। तो ऐसे जब सोशल ऑर्गेनाइजेशन हमें अवार्ड्स देते हैं तो ऐसा बहुत स्पेशल लगता है। ऐसा लगता है कि जो मेरा काम जो रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था उसको भी रिकग्निशन मिली है। यादगार तो मेरा पहला था स्टेट अवार्ड जो मुझे मिला था महाराष्ट्र शासन का। गम्मत जम्मत मेरी फिल्म थी, पहली फिल्म। उसके लिए मुझे 1988 में अवार्ड मिला था मेरी पहली फिल्म के लिए और उसके 10 साल बाद 98 में फिर एक बार मुझे महाराष्ट्र शासन का पैज लगनाचे फिल्म के लिए मिला। तो ये बहुत यादगार पल रहे हैं। मैं ना लूं सबसे पहले अवार्ड क्या मायने रखता है जिंदगी में? बहुत मायने रखता है। जब स्कूल में हम रिजल्ट का वेट करते थे हर एक साल बाद कि क्या ग्रेड मिलेगा, उस हिसाब से अवार्ड्स के भी हम लोग वेट करते हैं। हर एक साल बाद जब अवार्ड सेरेमनी होती है तब वेट करते हैं कि कौन सी कैटेगरी में नॉमिनेटेड है या हमें मिल भी रहा है कि नहीं। इट्स अ वेरी बिग एंड अ ग्रेट थिंग क्योंकि इससे हम इंस्पायर्ड होते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं इसे पाने के लिए। बिकॉज़ ये मिलना बहुत मेहनत का काम है।
it's very difficult to earn, and I'm very thankful to Abhishek जी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। रश्मि, जब अवार्ड मिलता है तो जिम्मेदारी कहीं और बढ़ जाती है, ऑडियंस को और ज़मीन उधर जाती है कि अब कुछ नया होगा, तो कुछ शोल्डर पे जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, उसके अलावा भी हमें बहुत जिम्मेदारी इसलिए लगती है क्योंकि लोग हमें देखते हैं, हम क्या किरदार निभाते हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, उस हिसाब से हम लोगों को एक्ट भी करना पड़ता है। तो जो हर एक शब्द, हर एक पहनावा, हर एक जो हम लोग दिखाते हैं ऑन स्क्रीन, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इवन हम जब बाहर होते हैं, लोगों से जब मिलते जुलते हैं, उनकी काफ़ी उम्मीदें होती हैं हमसे, और ऑडियंस हमारे मतलब कई बार ऐसे लगता है दे बिकम किड, बच्चों की तरह हमें कंप्लेन भी करते हैं, ऐसे क्यों दिखाया। अब वो साड़ी जो थी ना, वो नेक पीस के साथ ना इतना मैच नहीं कर रही थी, बट लाइक वो रोने वाला सीन आपने बहुत, हम भी रो रहे थे। ऐसी चीज़ें सुनते हैं तो बहुत अपनापन लगता है। आपकी यादगार, सबसे आपका यादगार अवार्ड फंक्शन वो कौन सा था जो आपको बड़ा याद रहा है अब तक? मेरा फर्स्ट टेलीविज़न अवार्ड था ITA का, जो मुझे पहला अवार्ड मिला था, और स्टार प्लस पे वो था, और उस टाइम पे मुझे क्रिटिक अवार्ड, मेरा फर्स्ट क्रिटिक अवार्ड जो मुझे दिया गया, मैं रो पड़ी थी क्योंकि मुझे पता नहीं था दैट क्रिटिक अवार्ड लोगों की, जनता के जो प्यारे होते हैं उन्हें मिलता है। सो उन कैटेगरी में मुझे पता था कि मैं नॉमिनेटेड हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा अवार्ड वो मुझे नहीं पता था, तो इट्स वेरी ग्रेट थिंग फॉर मी। थैंक यू सो मच। इंडिया न्यूज़। हाँ, हिंदी, इंग्लिश? Hindi. Hi, I'm Rashmi Desai and you're watching Living India News. Dr. Mohammad Ubaidullah Beg got this. I'm Dr. Mohammad Ubaidullah Beg got this award, Achiever Award, All India Achiever Award. The third, I got first award from the President of India for the research on Best Doctor Award. The second award with the Governor of Tamil Nadu in 2013. The third award what I've received now, just now I've received this third award. I'm very much glad today, and I want to congratulate all the awardees. Those are along with Bollywood's cinema, and I am also very much glad today for receiving this award, and I want to give some of the news, some of the information regarding this kind of awards, appreciating more on that. Those are newly emerging field in this different categories, different research programs, different type of other fields. I must congratulate all the awardees, those are received this award. Thank you very much. Thank you very much. इसीलिए तो इंतजार था बस। अभिषेक साहब, बड़ी जिम्मेदारी होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, जो हिंदुस्तान के चुने हुए लोगों को लेके आना और उन्हें छांट कर उसमें से फिर अवार्ड देना, और एक इतना बड़ा ह्यूज प्लेटफॉर्म पे अवार्ड देना है बॉलीवुड को, और आपने सारे डिपार्टमेंट को एक कर दिया। मैं आप ही तो भी कहा था कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, इसमें बारीकियत भी बहुत देखनी पड़ती है, हमें स्क्रूटिनाइज करना पड़ता है कि हम किसको अवार्ड दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, क्या इस अवार्ड को वो लोग डिजर्व करते हैं। जैसे मेरे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से डिफरेंट फील्ड से अवार्ड, अपार्ट फ्रॉम सेलिब्रिटीज, फ्रॉम फिल्म एंड टेलीविजन, हर एक ने चुन चुन के अच्छा काम किया है, और हम स्क्रूटिनाइज करके उनको अवार्ड देते हैं। बस यही है ऑल इंडिया अचीवर्स कॉन्फ्रेंस का छोटा सा काम। बहुत बारीकियत होती है, हम हर एंगल को सोचते हैं, हर एंगल को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं और समझते हैं हम क्यों दे रहे हैं, और फिर उसके बाद डिस्कशन होता है, फिर फाइनल वो होता है कि ये डिसाइड करते हैं कि हाँ इसको देना है। तो ये तो हो गया इस बार का अवार्ड, अगली बार में क्या बारीकियों को ध्यान रखेंगे? अगली बार और देखते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अच्छा काम किया, अभी उनका नंबर नहीं आया, मे भी अगले साल और आ जाएगा उन लोगों का नाम। हिंदुस्तान के हैं लोग, जो हिंदुस्तान से बाहर लोग जो कामयाब हैं, उन्हें किस तरह से प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे? उनको भी लेके आते हैं और NRI अवार्ड देते हैं, लेकिन यह है कि हमारे हिंदुस्तान में ही बहुत सारे लोग हैं, इनको देते देते आदमी थक जाता है, उनका नंबर नहीं आता, ये है। थैंक यू सर। थैंक यू।